مسیح خداوند کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ اگر آپ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی اپنا ہم سے جدا ہے، چاہے وہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے والد، ہماری والدہ، یا کسی اپنے کے سبب سے جو اس دنیا میں اب نہیں، اگر ہم غمزدہ ہیں اور تسلی نہیں پا رہے، تو آج کا کلام یقین جانیے آپ کے لیے ہے، اور خداوند اپنے کلام سے آپ کو تسلی دے گا۔ میں مقدس کلام میں سے آج ایک خاص پیغام، تسلی بھرا پیغام آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ مقدس کلام میں مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ یعقوب آنسو بہا رہا ہے، اور مقدس کلام میں اگر آپ پیدائش کی کتاب اور اس کے 37ویں باب کو کھولیں تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ بزرگ یعقوب اپنے بڑھاپے میں اپنے بیٹے یوسف سے بے حد پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ راخل سے اس نے جنم لیا اور وہ اس کے بڑھاپے کا فرزند تھا۔ مقدس کلام میں تحریر یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں میں سے نہ صرف یوسف سے پیار کرتا، بلکہ اس نے ایک خاص بو کلمون، ایک رنگدار لباس، اسے پوشاک، ایک کوٹ اسے بنوا کر دیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مقدس کلام میں پھر ہمیں آگے نظر آتا ہے 37ویں باب میں کہ بزرگ یوسف ایک خواب دیکھتا ہے اور اسے اپنے بھائیوں سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کھیت میں ہیں اور ہم پولے باندھ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میرا پولا اوپر چلا جاتا اور تمہارے پولوں سے اوپر جاتا، اور تمہارے پولوں نے گر کر اس کے آگے سجدہ کیا۔ اس کے بھائیوں نے جلدی سے اس کی تعبیر بھی کی اور کہا کیا ہم پر تو حکومت کرے گا یا ہم پر سلطنت کرے گا؟ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک اور خواب دیکھا اور اس نے کہا سورج، چاند اور ستارے، سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے بزرگ یعقوب نے اسے اس سبب سے ڈانٹا اور کہا یہ کیسے خواب ہیں جو تو دیکھتا ہے، کیا میں اور تیری ماں بھی تجھے سجدہ کریں گے؟ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ یہ باتیں یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنی، اور اس کے بھائی ان سے حسد رکھنا شروع ہو گئے۔ اب یوسف تقریباً 17 برس، مقدس کلام میں لکھا ہے، ابھی وہ نوجوان ہی تھا، تو 17 برس کی عمر میں لکھا ہے اس کے باپ نے جب اس کے بھائی دور علاقہ میں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے جا، میں تجھے 2-3 کے ایک علاقہ میں چاہتا ہوں تو جا اور وہاں پر اپنے بھائیوں کی خیر و عافیت دریافت کر کے آ۔ جب وہ جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس کے بھائی اسے دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو کلام میں لکھا ہے اس پر ہاتھ ڈالا اور اسے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تاکہ وہ اسے ہلاک کیا جائے۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، یقیناً یوسف اس وقت اپنے بھائیوں کو پکار رہا تھا تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، حالانکہ روبن کی خواہش، جو بڑا بھائی تھا، جو یعقوب کا پہلوٹا تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ ایک بار یوسف کو اس کنویں سے نکال کر اس کے باپ کے پاس پہنچا کر میں کہوں گا کہ باپ اس کا خیال کرنا۔ لیکن جب وہ اپنے بھائیوں سے کہیں الگ تھا تو لکھا ہے یہودا کے مشورے پر ایک قافلے کو دیکھ کر اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور اسماعیلیوں نے اسے مصر میں جا کر ایک بار پھر سے میدان میں کھڑا کیا، بازار میں کھڑا کیا، اور پوتیفر نامی ایک شخص نے اسے خرید لیا اور وہ اس کے ہاں پر غلام بنا۔ اور مقدس کلام میں پھر نظر یہ آتا ہے کہ وہ یوسف جو اپنے باپ کے گھر میں پیارا اور لاڈلا تھا، اس کی زندگی میں ایک زوال ہمیں نظر آتا ہے، ایک ڈکلائن فیز نظر آتا ہے، اور 17 سال کی عمر کے بعد جب اس نے وہ خواب دیکھ لیے تو کلام میں لکھا ہے اس کے بھائیوں کا حسد، اس کا کنویں میں پھینکا جانا، اس کا اسیروں کی طرح غیر ملک میں جانا، اور پھر وہاں پر ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے پوتیفر کے گھر میں ملازم ہونا،
मुकद्दस कलाम कहता है, क्या यूसुफ सोचता कि खुदावंद किस तरह के मैंने ख्वाब देखे। इसी दौरान मुकद्दस कलाम में लिखा है यूसुफ तो इस तरफ आया, लेकिन अब उसके भाइयों ने ये देखा कि अब हम अपने बाप को क्या जाकर जवाब दें। तो इसी दरमियान उन्होंने एक मंसूबा ये बनाया कि वो बूकलमून, वो रंगदार लिबास जो उसके बाप ने यूसुफ को दिया था, उन्होंने उसी को एक तरह से फाड़ा, उस पर एक जानवर के खून को लगाया और उसे इस तरह जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ा हो, और वो लिबास जाकर कलाम कहता है याकूब को दिखाया, वो कोट उसे दिखाया। और मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखिए लिखा क्या है। अगर आप पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब खोलें और उसकी 34वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। 33वीं आयत से पढ़ते हैं, और उसने उसे पहचान लिया, जब पोशाक उसे दी गई, लेकिन पहचान लिया और कहा ये तो मेरे बेटे यूसुफ की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैराहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता था, मैं मातम करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। अब पढ़कर देखिए लिखा क्या है। लिखा है याकूब ने उस लिबास को जब पहचान लिया तो लिखा है वो मातम करता है। लिखा है उसने अपनी पोशाक को चाक कर दिया, फाड़ दिया और दुख और गम की हालत में बैठा है। और कलाम कहता है पैराहन चाक करके टाट ओढ़ कर बैठ गया। उसके बच्चे उसे तसल्ली देने के लिए आते, क्योंकि आप और मैं ये समझ पा रहे हैं कि वो अपने बाप को धोखा दे रहे थे। वो जानते थे कि यूसुफ मारा नहीं गया, लेकिन उसका बाप आंसू बहा रहा है, गम की हालत में है। बेटे बच्चे तसल्ली देने आते हैं, लेकिन कलाम में लिखा वो तसल्ली कबूल नहीं करता और वो कहता है मैं रोता हुआ अपने बेटे से जा कब्र में मिलूंगा। क्या आप और मैं भी कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा अपना बेटा, हमारी बेटी, हमारे वालिद वालदा, बहन भाई, जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत और प्यार होता है, जब इस दुनिया से जाते हैं उनके सबब से हम तकलीफ पाते, और जब हमें कोई तसल्ली देता है हमारा दिल तसल्ली कबूल नहीं करता। वो बातें याद आती हैं, वो लम्हे याद आते हैं जो हमने उनके साथ गुजारे होते हैं। तकलीफ होती है, दुख होता है। कलाम में लिखा यही सब कुछ याकूब के साथ हो रहा है। लिखा वो तसल्ली कबूल नहीं करता। कलाम में बात आगे बढ़ती है। कलाम में लिखा वक्त गुजरता जाता है, और जब यूसुफ 30 साल का होता है, वो फिरौन जो उस वक्त मिस्र का बादशाह मौजूद था, वो ख्वाब देखता है और वो उसके ख्वाबों की ताबीर करके 30 साल की उम्र में पूरे मिस्र पर हाकिम बन जाता है। उसके बाद कलाम में लिखे 7 साल खुशहाली का दौर आता है, क्योंकि उसके बाद 7 साल सख्त काल पड़ना था। उस 7 साल में यूसुफ बड़े बड़े जखीरा खाना बनाता है, खुराक को जमा करता है, और फिर जब वक्त आया कि तमाम दुनिया में काल पड़ा तो लोग खुराक के लिए मिस्र में आना शुरू हुए, और यूसुफ एक अच्छा मुंतजिम के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर खुराक लोगों में तकसीम करता जाता है। कलाम में पढ़कर देखें तो लिखा है याकूब भी मुल्क कनान से अपने बच्चों को भेजता है ताकि वो गल्ला लेकर आए। लेकिन जब वो वहां जाते हैं, पहली बार नहीं लेकिन दूसरी बार आखिरकार यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करता है। और कलाम में लिखा है जब वो उन पर जाहिर करता है तो पढ़कर देखे लिखा है वो उन्हें गले मिलता है, उन्हें गले मिलकर जार जार रोता है और पूछता है मेरा बाप कैसा है, क्या मेरा बाप अब तक जीता है। और कलाम में पढ़कर देखे लिखा है वो अपने भाइयों से कहता है जल्द जाओ और मेरे वालिद और सारे घराने को यहाँ कर लेकर आओ, खुदा ने मुझे तुमसे आगे भेजा है और मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि यूसुफ के भाई वापस लौटते हैं। वो
11 की 11 वापसी जब जाते हैं, और लिखा है वो जब याकूब के पास पहुंचते हैं, अगर और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम है। और लिखा है याकूब का दिल धक से रह गया क्योंकि उसने उनका यकीन ना किया। पढ़कर देखिए, लिखा है कि यूसुफ के बारे में याकूब तो तसल्ली नहीं पा रहा था। आज की तारीख में अगर बात करें, 22 साल गुजर चुके हैं, वो अपने बेटे के लिए गमज़दा था। और 22 सालों के बाद जब उसे यह पता लगा कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है, मैं अपने जीते जी उसे फिर देख, मेरी निगाहें उसे फिर देखेंगी, मैं उसे फिर से गले लगा सकूंगा। कलाम में लिखा है उसका दिल गोया थक से रह गया। और खुशी और हैरत के उस मौका पर कलाम में लिखा है जब उसने तमाम इंतजाम को देखा, गाड़ियां देखी जो उसके बेटे ने उसके लिए भिजवाई कि तुम जल्द यहां पर आ जाओ। और कलाम में फिर मुकद्दस कलाम में से ही 40वें बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़ें। पैदाइश की किताब 40वां बाब और उसकी 29वीं आयत आपके लिए पढ़ने लगा हूं। और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, चाहे मैं मर जाऊं क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अब तक जीता है। अब पढ़कर देखिए मुकद्दस कलाम में लिखा है कि यूसुफ अपने बाप के इस्तकबाल को जाता है और लिखा है फिर दौड़कर उसके गले लग जाता है। और लिखा है और वो वहीं उसके गले लिपट कर लिखा बहुत देर तक उसके गले लगकर रोता रहा और उसे बताता है बाप तेरे बगैर जो वक्त गुजरा वो कितना तकलीफ देता। बाप उससे कहता है बेटा तेरे बगैर मैं किस तरह आहें भरता और आंसू बहा रहा था, तेरे बगैर मैं तसल्ली नहीं पा रहा था। और आज जिसे मुर्दा समझ के याकूब ने 22 साल दुख किया उसे जीता गले से लगाया। क्या खुशी का लम्हा था जो 22 साल के बाद उससे मिला। मैं आपको तसल्ली के लिए खुदावंद के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कब, लेकिन वो जो खुदावंद में है मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। शायद याकूब ने 22 साल बाद एक खास तसल्ली पाई और जिसे मुर्दा जानता था उसे जिंदा पाया। शायद अगले 22 महीने, शायद अगले 22 साल बाद, लेकिन वक्त आएगा जब आलम बाला पर आखिरी नसिंगा फूंका जाएगा तो मुर्दे फिर से जिंदा होंगे, हम अपनों को फिर से मिलेंगे और हम जिन्हें मुर्दा जानकर आज तसल्ली नहीं पा रहे हम उनके गले लगेंगे और शायद बहुत देर तक रोते रहेंगे। और उस दिन जो आंसू होंगे वो दुख और तकलीफ के नहीं बल्कि वो खुशी के होंगे और हमें यकीन आएगा कि खुदावंद ने कितना खूबसूरत इंतजाम हमारे किया। और फिर हम खुदावंद के साथ होंगे, आलम बाला पर जाएंगे और फिर हमेशा एक साथ रहेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनों को ना सिर्फ देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और फिर एक साथ रहेंगे। अगर आप चाहें तो मुकद्दस कलाम में से मैंने एक सरमन पहले से इस पर अपलोड किया कि क्या हम आसमान पर एक दूसरे को पहचान पाएंगे और हमारी याददाश्त होगी। अगर आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस बात को भी जान सकते हैं। लेकिन आज का हासिल कलाम जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ, याकूब ने तसल्ली कबूल नहीं कर रहा था। कलाम में लिखा है वो जिसे मुर्दा जानकर गम कर रहा था उसे जिंदा पाया और खुशी से उसके गले लिपट कर बहुत वक्त तक रोया। और मुकद्दस कलाम कहता है उसने फिर उस खुशी को और तसल्ली को पाया। आप और मैं अपनों को खोने के सबब से अगर गमज़दा हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ अगर हम खुदावंद में हैं, वक्त आएगा हम ना सिर्फ अपनों को मिलेंगे, पहचानेंगे, बल्कि खूब तसल्ली पाएंगे। हाँ, मेरे पर मुझे वक्त का इल्म नहीं, शायद 22 हफ्तों के बाद, शायद 22 महीनों के बाद, शायद 22 सालों के बाद, लेकिन एक वक्त आएगा हम ज़रूर तसल्ली पाएंगे। अगर आपका कोई अजीज, कोई अपना, कोई करीबी आपसे जुदा हो गया है तो याकूब की और यूसुफ की ज़िंदगी से ये तसल्ली भरा पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि वक्त आएगा कि जिन्हें हम मुर्दा जानते हैं उन्हें जिंदा पाएंगे और उनके गले लिपट कर
ایک وقت آئے گا خوب محبت کا اظہار کریں گے۔ کاش خداوند کے حضور تسلی بھرا یہ پیغام آپ کو تقویت اور مضبوطی دے سکے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔